Okay, good evening to all. We are continuing with this course, and this is lecture number 13. So we have started this topic, incubated sludge process, right? It is basically a suspended aerobic growth system in which organic matter and microorganism are present in the tank in the what form? In the suspension form. Okay, so we are providing sufficient contact time to so that they can have good contact and microorganisms will consume their food from organic matter. Okay, so that's why we are considering organic matter as a food here, you can see. And another thing is the microorganism, that is biomass. Okay, तो बायोमास कंज्यूम होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और उसी से माइक्रो जनरेट होते हैं. तो as the time passes, the food organic matter will decrease as the time increases, but biomass will increase. Okay, as biomass will increase, microorganism concentration will increase, and the rate of decay of this organic matter is also increase. But after a certain point, the almost the food जो है वो काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन हायर होगी. इन दैट केस एंडोजेनस रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी. इसमें ये एक दूसरे को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे को किल करेंगे टू एक्सट्रैक्ट दियर एनर्जी, राइट. तो ये डिस्कस हम कर चुके थे. ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करने का तरीका dx by dt proportional to the x biomass. Degree of biomass, another thing ye endogenous, this constant will come into picture. As the process biological activity going on, this rate of this organic matter is going to be decrease, right? What is the x? यहाँ पे x हम डिस्कस किया था. x is the MLSS, mixed liquid suspended solid, active microorganism. And food, which is organic matter, is represented by ds by dt, and this is also decreasing. This is the kd is the decay constant at the time. हमें ये equation मिली थी minus y ds over dt is equal to dx over dt. Y is the fraction of organic matter which is consumed. Okay, fraction है ये, और ds over dt is the मतलब with the time rate of change of the organic matter equals to the rate of change of the biomass. Okay, biomass will increase, but at the same time this food will decrease, so that's why negative sign will come here. Okay, this is the process. PST, Q discharges coming with the BOD S0. This is the aeration tank. We are providing the oxygen through any mean diffuser nozzle, and this discharge will come here, and the fraction of some of this active microorganism will get back to this aeration tank. This is the QR, recirculated discharge, and some will go to the sludge digester and another will go effluent go to the this side. Okay, तो कुछ अलग अलग तरह के आपके टैंक थे. कंप्लीट मिक्स बताया था आपको, लोअर 25 ml के लिए यूज करते हैं. इन दिस केस कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ द incoming activated sludge with the waste water is done mechanically in order to increase the opportunity of contact between the organic matter. ठीक है. ओके, ये सब देख लिया था, और हमने ये भी समझ लिया था कि F/M रेशियो, how food to microorganism ratio is related to the efficiency. Okay, this we have understood in the last class. Another type is the plug flow. Plug flow is used for the higher capacity, higher discharge. Okay, in which the wastewater moves progressively. Okay, progressively along the length of tank, remaining essentially unmixed throughout the volume of tank. तो mixing proper नहीं है. If mixing proper नहीं है, तो there will be a operational instability, or you can say the operational stability is bit poor than the complete mix process.
but efficiency, we have increasing the efficiency because as the time passes or as the length, this is the tank, let us say ये टैंक है और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वेस्ट वाटर ट्रेवल कर रहा है, तो लेफ्ट से राइट, तो विद द लेंथ ऑफ दिस टैंक, विद दिस डिस्टेंस x and x is maximum to the L, the food or concentration of organic matter is decreasing, right? As it is decreasing, so we can say that the microorganism concentration is optimum, it is higher, so we can say that the rate of decay of this organic matter will be faster and efficiency of tank will increase. Okay, पे वही चीज लिखी हुई है, Abram ratio of oxygen demand decreases along the length of the tank, microorganism increases along the length. Okay, and the food, so Abram ratio will decrease, so the contact of OM and MO is more, so neta is higher. Okay, efficiency will increase. Another one, the extended aeration process. The four enzyme in the extended aeration process essentially completely mixed. In this case, the PST is avoided. तो ये आपको ध्यान रखना है. This is very important point. Extended aeration process में आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को ही रिमूव कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं. ठीक है, एंड इट यूटिलाइजेज द लो OLR. यहाँ पे जो मेन कंडीशन है दैट इज द लो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एंड द हाई MLSS concentration and the long aeration channel. So discharge of whatever the discharge we are treating, that is a bit lesser, organic loading rate is lesser, but at the same time the process is of decaying is faster. So MLSS, mixed liquor assimilated solid or microorganism presence, वो अच्छी खासी होती है, वो ज़्यादा होती है, and is the long aeration tank. It may be vary, this tank may vary to the 20 to 30 meter to the 100 to 200 meter, right? So that the treatment will be better. Like normal ASP, it is maintained in the endogenous phase, which results in the high concentration of dead cell in the sludge. It was that in turn avoid the use of digester after this treatment. Okay, ये कह रहे हैं कि दूसरे ASP के कंपैरिजन में इसमें डेड सेल्स जो जनरेट होते हैं, जो स्लज डाइजेस्ट होता है, वो इसी टैंक में ही हो जाता है ड्यू टू दिस लॉन्ग फेज, लॉन्ग नैरो लॉन्ग चैनल एरेशन टैंक चैनल. सो सेपरेटली हमें बहुत ज़्यादा स्लज डाइजेस्टर की नीड नहीं होती है अपने स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, and the point here is the PST is avoided because long narrow channel is work as the sedimentation tank, is act as a sedimentation tank. So long narrow channel में जब जब this long narrow channel है तो waste water is flowing from this left to right. Okay, here, so in such case this long channel will act as a plain sedimentation tank, right? This, due to the gravity, some particles, some heavy particle will settle definitely. So there is that's why we are removing the PST. There's some representation that we need to understand, that Q use the useful sludge discharge. Okay, U is the useful sludge discharge. X use the biomass useful concentration which is going to the sludge. ओके, देखिए PST यहाँ पर है, PST से Q नॉट आया, X नॉट उसमें मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन, S नॉट रिप्रेजेंट द BOD, Q नॉट रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज. ओके, ये आ गया आपका एरेशन टैंक में, ये वॉल्यूम है X है और ये S इसका. ठीक है, फिर ये यहाँ से आपका जो है Q नॉट प्लस QR. वाई QR यानी रिसर्कुलेटेड सीवेज जो आप SST से यहाँ से रिसर्कुलेट करोगे. ओके, देखिए यहाँ पे QR लिखा हुआ, दैट्स वाई Q नॉट प्लस QR. दिस इज योर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. कुछ इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से ट्रीट होके एफिलेंट आगे जाएगा. ओके, बट एफिलेंट क्या होगा, वो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, Q नॉट प्लस QR टोटल आ रहा था, माइनस QU क्या है, QU यहाँ से हम आउटलेट, यहाँ से हम वेस्ट भेज रहे हैं, QU हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, जो कि हम आगे स्लज डाइजेस्टर में भेज रहे हैं. ठीक है, और XU इज द कंसंट्रेशन ऑफ द MLSS, S इज द BOD. तो जो एफिलेंट कंसंट्रेशन होगी, एफिलेंट डिस्चार्ज होगा, वो कितना होगा, Q नॉट प्लस QR टोटल डिस्चार्ज माइनस QU यहाँ से नीचे भेज रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे लिखा है Q नॉट माइनस QW. ओके, QW क्या है, QW टोटल वेस्टेड मतलब दैट QW इज द QR एंड QU बेसिकली. ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये जा रहा है इस तरह से और इट विल गो टू दी स्लज डाइजेस्टर। फाइन, वेयर यहाँ पे लिखना है XU इज द सॉलिड कंसेंट्रेशन ऑफ स्लज। जो स्लज डाइजेस्टर में जा रहा है दैट इज बिट सॉलिड कंसेंट्रेशन, और यहाँ जो जा रहा है XE इज द एफ्लुएंट कंसेंट्रेशन, और X आपका नॉर्मल कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो XU इज ग्रेटर देन X, ओके, क्योंकि ये किसके टर्म में, मिलीग्राम पर लीटर में। तो चूंकि ये सॉलिड है तो इसकी कंसेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में ज़्यादा होगी हमारे नॉर्मल X से, XU की, जो स्लज डाइजेस्टर में बेसिकली जा रहा है। और दूसरा आपका क्या है, XE। XE इज द एफ्लुएंट कंसेंट्रेशन, MLSS, ठीक है। एफ्लुएंट मतलब जिसमें पानी ही मतलब काफ़ी हद तक साफ पानी है, ठीक है, जो ट्रीटेड वाटर है SST के बाद, इसकी जो कंसेंट्रेशन होगी मिलीग्राम पर लीटर वो लेसर होगी हमारे X से, जो हमारे यहाँ से PST से आ रहा है, ठीक है। तो दिस 2 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। नाउ बायोमास कंजर्वेशन इक्वेशंस हम लगा रहे हैं सो दैट वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज गोइंग, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ बायोमास, बायोमास इन प्लस बायोमास ग्रोथ कितना हुआ इज इक्वल टू बायोमास आउट, ऑब्वियसली कितना आया, कितना ग्रोथ हुआ और कितना वहां से निकला। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, सो Q नॉट इंटू X नॉट। बायोमास या MLSS आपके X की फॉर्म में होता है, यू नो दैट, और इसको जब डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे देन ओनली वी विल गेट द क्वांटिटी। तो Q नॉट S नॉट इट इज कमिंग प्लस बायोमास ग्रोथ, कितना ग्रोथ हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द एक्टिविटी, बायोकेमिकल एक्टिविटी। सो V इज द वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम का dx ओवर dt, कितना रेट, रेट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, रेट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, इक्वल टू बायोमास आउट, कितना बायोमास यहाँ से आउट हुआ, ये देखिए। तो Q नॉट माइनस QW, Q नॉट जितना डिस्चार्ज आ रहा था, QW कितना डिस्चार्ज वेस्ट हुआ, दिस विल गो टू दी एफ्लुएंट वन इनटू एफ्लुएंट कंसंट्रेशन XE, प्लस जितना आपका वेस्ट हुआ, जो भी आप रिसाइकल कर रहे हो या फिर जितना आप स्लज डाइजेस्टर में आपको सेंड करना है उतना डिस्चार्ज QW, और उसका सॉलिड का कंसंट्रेशन XU। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि XE यानी जो मिक्स सिलिकॉन सस्पेंडेड सॉलिड आपका है एफ्लुएंट में, वो बहुत कम है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ट्रीटेड वाटर है, और जो ट्रीटेड वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस भी थोड़ी कम होगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन take this, we are taking this term zero, so this whole term will zero, okay, and Q naught into X naught, okay, X naught is the initial concentration, okay, so this initial concentration and this is the V dx over dt, okay। यहाँ से जीरो हो गया तो ये बचा आपका QW into XU दिस टर्म, और यहाँ से आपका बचा V K माइनस KER into X, ओके। ये कैसे निकाल दिया हमने, क्योंकि हमने अर्लियर एक डेरिवेशन देखा था, इसमें dx ओवर dt इज इक्वल टू हम देख रहे थे K माइनस KER into X, क्योंकि हमने पढ़ा था ना dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू kx, एंड अनदर इक्वेशन इज dx इज इक्वल टू dt इक्वल्स टू माइनस KERX, है ना। जब कंबाइन कर रहे थे तो K माइनस KER into X आ रहा था, राइट। तो वहां से इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। ओके, दिस टर्म वी आर टेकिंग जीरो Q नॉट इंटू X नॉट। तो बायोमास इन, जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो बायोमास इनलेट के टाइम पे, जस्ट इनलेट के टाइम पे, इनिशियल पॉइंट पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस बायोमास एंटरिंग बायोमास दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीरो। तो यहाँ पे dx ओवर dt कन्वर्ट कर लिया K माइनस KER इंटू X में, ओके। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई, K की टर्म में हमने निकाल दिया QW XU over Vx plus KER, okay, this is equation number 1, let us say. Another we are taking conservation in terms of the food, okay, इसको भी ध्यान से देखिए। Applying mass conservation, food in minus food consumed is equal to food out. So what is the food in, कितना food in, Q naught into S naught, POD जब मल्टीप्लाई करते हैं डिस्चार्ज में तो you will get the weight of the organic matter माइनस फूड कंज्यूम्ड कितना हुआ, है ना। कंज्यूम्ड का मैंने बताया था वॉल्यूम के टर्म में लेंगे तो ds ओवर dt, कंजम्पशन जो था वो ds ओवर dt के टर्म में लेते थे, और माइनस हम साइन क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज फूड कंज्यूम हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग टू डिक्रीज, ओके। इक्वल्स टू फूड आउट कितना आया, तो Q नॉट माइनस QW इंटू S प्लस QW इंटू S। जितना BOD आपका वेस्टेज में जा रहा है, कितना BOD आपका किस में जा रहा है, एफ्लुएंट के टर्म्स में जा रहा है ट्रीट होके, दैट इज Q नॉट माइनस KW डिस्चार्ज इनटू दैट BOD S, ओके।
and we know that the fraction minus y ds over dt is equal to dx over dt. Okay, and dx over dt is equal to kx. These two formula we know. So when we put this equation, this formula in the above equation, q naught s naught minus v, we are replacing this minus ds over dt with the dx over dt over into 1 over y, okay, is equal to q naught into s, okay, qw into s, and minus qw into s and plus qw into s, this will cancel out. तो आपका बचा क्यू डब्ल्यू इंटू एस. ओके, फर्दर इसको सॉल्व करा आपने और के टर्म में आप यहाँ से के निकालोगे. योर के इज कमिंग बाय द फूड कंजर्वेशन क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस वाई ओवर वी एक्स. इक्वेशन नंबर 2. बोथ आर के, so we have to equate these two equation. One is coming from the biomass and another is coming from the food organic matter. So after equating these two equations, we are getting this formula qwxu over vx plus ker equals to q naught s naught minus s y over vx. Okay. नाउ कमिंग टू दी, ये फॉर्मूला वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे और इसमें ब्रेकअप देखेंगे इसका. डिजाइन पैरामीटर ऑफ एएसपी. फर्स्ट इज द एचआरटी, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द rate of the flow of the wastewater in the excluding recirculation. Okay, so it is basically volume over the discharge. हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, जैसे डिटेंशन टाइम आप पढ़ते थे वैसे वॉल्यूम ओवर द डिस्चार्ज वही कह रहे हैं. ओएलआर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, it is defined as the ratio of the amount of organic matter entering into the system to the volume of aeration tank. Okay, तो कितना आपका जो है amount of organic matter है, the ratio of that with the volume, the q naught s naught over the volume of tank, kg per meter cube per day. This is OLR. Third one is the specific food utilization rate U. Okay, U क्या है? Specific food utilization rate. How the microorganism utilizing their food in yani consuming the organic matter. It is defined as the ratio of amount of organic matter removed by the system to the mass of biomass in the aeration tank. तो बायोमास का मास कितना होता है? एक्स कंसंट्रेशन होती है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ बायोमास आएगा वी इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. और न्यूमिनेटर में क्या है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड बाय द सिस्टम. रिमूव बाय द सिस्टम मतलब कितना था? क्यू नॉट माइनस एस नॉट इनकमिंग था और कितना वो हमसे नीचे गया और एफलेंट के टर्म्स में गया था. क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू एस ये एफलेंट के टर्म्स में गया और क्यू डब्ल्यू क्यू एस आपका स्लग डाइजेस्टर के टर्म्स में गया. जितना ये आपने फूड यूटिलाइज करा, इतना कंज्यूम हुआ, इतना रिमूव हुआ, यूटिलाइज हुआ ओवर द टोटल कंसंट्रेशन एमएलएसएस. ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में इसका ऐसे बनेंगे क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस ओवर वी एक्स. ओके, एक दो टर्म्स और आती हैं, एफ बाई एम रेशियो, स्लज एज, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स. बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है गेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. Just wait.
Okay, so next topic is the sludge age. What is the sludge age? Sludge age signifies the time for which biomass remain in the system. एक बेसिकली वो टाइम, थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन समझना है कि जितने टाइम के लिए बायोमास सिस्टम में रहा है, ओके, और मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास of biomass and event to x in the aeration tank to the mass of the biomass leaving to the system. And it is a basically ratio कि जो बायोमास है वो एरेशन टैंक में whatever with the biomass present in the aeration tank divided by the biomass leaving from the system or leaving from the tank. तो थीटा सी रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा सी इक्वल टू वी इंटू एक्स, यानी कितना बायोमास है और कितना लीव करा, यानी क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी एफिलेंट वाला, और जो नीचे आ रहा है दैट क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। और ये तो नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन है तो इसको जीरो मान लेते हैं, जैसे पहले जीरो माना था। इट इज कमिंग वी एक्स ओवर क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। इट इज योर स्लज एज, कि स्लज एज मतलब कितना सिस्टम में है और कितना जो है सिस्टम को लीव कर रहा है, ठीक है। स्लज एज कंट्रोल्स द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द एएसपी। ओके, तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बायोमास जो है उसमें रहे, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस See, यहाँ देखिए, if nitrification to be avoided, sludge age is reduced by the increasing the wasted sludge discharge. अगर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अवॉइड करी तो स्लज एज रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? बिकॉज वेस्टेज स्लज डिस्चार्ज जो है क्यू डब्ल्यू वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला इक्वेशन ने पहले पढ़ी थी, कौन सी वाली? देखिए ये वाली, इस फॉर्मूला में हम रखेंगे अपने u को और अपने थीटा सी को। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट इज 1 अपॉन थीटा सी प्लस के ई आर एंड प्लस यू इंटू वाई। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एफ बाई एम रेशियो, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू द सिस्टम टू द मास ऑफ बायोमास इन द एरेशन टैंक। कितना फूड है, अगर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है सिस्टम में जो एंटर कर रहा है, कितना उसको कंज्यूम करने के लिए आपका बायोमास है, कितना, वही एम एल एस एस है ना, क्यू नॉट इंटू एस नॉट जो एंटर कर रहा है ओवर वी एक्स, kg per day. This is F by M ratio, which directly relate to the efficiency of the aeration tank or SST. Okay, recirculation ratio सबको पता ही है, R is equal to QR over Q naught, है ना। हम क्या जो इक्वेशन कर रहे हैं ना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, टेकिंग द एरेशन टैंक द सिस्टम बायोमास इज एंटरिंग एंड अप्लाइंग द मास कंजर्वेशन इक्वेशन व्हिच इज a Q naught S naught plus QR XU, जो भी रिसर्कुलेशन हो रहा है, इज इक्वल टू Q naught plus QR into x. ओके, R इज इक्वल टू QR ओवर Q naught, तो यहाँ से निकल के आ गया x ओवर XU माइनस x। R इज इक्वल टू QR ओवर Q naught होता है, तो यहाँ से निकल के आया मास कंजर्वेशन से x ओवर XU माइनस x। सॉलिड कंसंट्रेशन में XU की क्वांटिटी, XU कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉलिड में MLSS की, तो XU माइनस x जो इनिशियल था और x जितना रिटर्न हुआ, ठीक है। स्लज एज हो गया। अब आता है आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। It represents the concentration of sludge in the system that helps in deciding the rate of return of sludge which is required to maintain the desired level of the MLSS in the aeration tank corresponding to the given F/m ratio to achieve desired degree of treatment. Okay, क्या कह रहे हैं? It represents the concentration of sludge and system that helps in deciding the rate of return of the sludge. Okay, तो ये बेसिकली क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है जो आपका स्लज है इन 1 ग्राम in ml by 1 gram of the solid mix in the liquor and allowed to settle for 30 मिनट। ओके, तो बेसिकली कितना वॉल्यूम है स्लज का और कितना उसका जो है वेट है ना। तो इसका जो यूनिट बनती है वो भी देखिए ml पर ग्राम बन रही है ना। तो SVI इज ml पर ग्राम। ओके, तो ml को इसमें करेंगे, इसमें यू नो that XU is in the milligram per liter. Okay, तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में और ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो 10 to the power 6 will come into picture. So SVI is equal to 10 to the power 6 over XU. Okay, XU is the sludge, basically a sludge which is going to the sludge digester, है ना, which is you can say dry sludge. Sludge volume index is a dry sludge itself, but the unit of sludge volume index is milliliter per gram. Okay, वहीं से ये फॉर्मूला रिवर्स कर दिया, x is equal to 10 to the power 6 over sludge volume index.
ओके, आर हमें पता ही था x ओवर एक्स यू माइनस एक्स था, उसी को और कन्वर्ट कर दिया, x ओवर एक्स यू को कन्वर्ट कर दिया 10⁻6 ओवर SVI। देखिए स्टैंडर्ड है फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट SVI इज इन द रेंज ऑफ 80 to 150 मिलीलीटर पर ग्राम। ओके, द यूनिट इज मिलीलीटर पर ग्राम। We determine the how much should the QR so that the desired MLSS from form and which maintain the efficiency to the tank। okay? तो कितना MLSS बनना चाहिए, कितना QR होना चाहिए, वो इस सर्विस को ये रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ SVI, कैसे पता लगाएंगे SVI क्या है? Experimentally, SVI is a determination by collecting the 1 liter of the 1 liter, okay, remember the 1 liter of the mixed liquor suspended from the aeration tank and its discharge end in the calibrating container which allowed to settle for the 30 minute and volume of the solid settled in the is noted that the VOB, कितना वॉल्यूम ऑफ स्लज सेटल हो रहा है 30 मिनट में और कितना कंसंट्रेशन थी, दैट इज योर एक्स। ओके, उसके बेसिस पे ये निकालते हैं आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, है ना। उसके बाद ये देखिए स्लज निकाल दिया, उसको फिल्टर करा, 104 डिग्री पे हीट अप करा और आपको क्या मिल गया, XOB मिल गया, है ना, यानी सॉलिड कंसंट्रेशन मिल गया। VOB इज द वॉल्यूम, SVI इज इक्वल टू VOB ओवर XOB, है ना, यानी मिलीलीटर ml पर लीटर कितना वॉल्यूम हुआ और XOB इज द मिलीग्राम सॉलिड स्लज आपको जो अटेन हुआ इन पर लीटर। पर कैंसिलिंग दिस यूनिट आपके आगे ml पर मिलीग्राम, तो इसकी यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, मिलीलीटर पर मिलीग्राम। ओके, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें मिलीलीटर पर ग्राम में, मिलीग्राम को डिनोमिनेटर में ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1000 आ जाएगा नीचे, मतलब 1000 आ जाएगा ऊपर। तो SVI इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला इस तरह से लिखा है 1000 VOB ओवर XOB, SVI इज इक्वल टू 1000 VOB ओवर XOB, तो आप समझेंगे दिस यूनिट इज इन मिली लीटर ओवर क्या, ग्राम। ओके, ओवर ग्राम। ओके, critical points, the most important aspect in operation of ASP is to maintain the proper F/M ratio, which can be achieved by increasing or decreasing the MLSS concentration in the aeration tank। तो वो रिसर्कुलेशन कितना करना है, MLSS XU X0 को कैसे वेरी करना है, उस पर हमारी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए लिखा है डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्लज controlled by the concentration of sludge in the system, that is referred as the SVI। SVI को वेरी करा के भी हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी स्लज आया दैट इज बीइंग सेंट टू द एरोबिक डाइजेस्टर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। Okay, so next thing we'll see in the next class which are theoretical points, and after that we'll see numerical। Okay, thank you।